Okay, let's start with question number 4. Question number 4 is very, very important. It says, it talks about isosceles property. So I will just explain you that. What is an isosceles triangle? Isosceles triangle is when two sides are equal. Okay, two sides are equal, then the angles equal to the opposite side will be equal. Then you will like what? See, this is the side. What is the opposite angle? This one. If this is the side, then what is the opposite angle? This one. So these two angles will be equal. So if sides are given equal, this one and this one, then two angles will be equal. Okay, and the opposite is also true, that if the angles are equal, these ones, then the two sides will be equal, this one. Okay, so let's just start the question. I'll do question 4 first and then we can do the other one. It says, triangular roof truss ABC supports the roof of a building. Two timber support studs are there. BM is perpendicular to AC. Okay, it is already given that BM is perpendicular to AC. So if you can see, this is 90 degree given. Okay, then CN is perpendicular to AB. CN is perpendicular to AB. Okay, right angle is given, and BM is equals to CN. So this particular side, BM equal to CN. Okay. Now, the engineer claims that if the two struts are equal, the main rafters also should be equal. Now, what are the main rafters? The main rafters are talking about AB and AC. So let's see how do we do that. It says, prove this claim in 2 steps. First, prove that BCM, which is this one, okay, is congruent to CBN, which is this one. Okay, so let's understand that how they are equal. In this one, if you see, we have this side equal to this one. Okay, then right angle is also there. So maybe RHS say they are congruent. Let's see. Right angle is there, yes. Hypotenuse is there, yes. How come? Because this for example, if I take BCM, okay, BCM is this one. Okay, so BCM ka hypotenuse is BC only, right? 90 degree के opposite. And CBN के opposite, I'll just erase this. CBN, इसमें भी 90 डिग्री के opposite, this is the hypotenuse. So दोनों triangles के लिए BC hypotenuse है. So I can say BC hypotenuse. Okay, then right angle you already have, you can name it. Okay, BNC and BMC 90. Then what side do we have? Any other side do we have? Yes, BM और CN इक्वल गिवन है. BM एंड CN इक्वल गिवन है. तो ट्राइंगल्स कौन से कॉन्ग्रेंट रूल से कॉन्ग्रेंट है? दे आर कॉन्ग्रेंट विद RHS. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? उन्होंने बोला है कि आप AB और AC को भी इक्वल प्रूव करो. दे आर आस्किंग AB AC को इक्वल प्रूव करो. हम कैसे करेंगे? और बोलो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, हम AB AC तब बोल सकते हैं कि ये इक्वल हैं जब इनके ये वाले पूरे एंगल्स इक्वल हो जाएं. तो ये तो बहुत आसानी से इक्वल हो जाएंगे. आई विल टेल यू हाउ. इफ़ आई टेक दिस एंगल, ठीक है, तो उसमें ये जो हमारा NBC वाला एंगल है, ठीक है, NBC इधर से NBC, ओके, और जो हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल है दिस वन, उसमें ये वाला एंगल विच इज़ MCB, राइट, MCB, वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे जब भी हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. MCB इज इक्वल्स टू NBC. तो हम CPCT से बोल सकते हैं कि इनके पार्ट्स कॉन्ग्रेंट है, इनके पार्ट्स इक्वल है, राइट, राइट. तो अब आपने जब इस पूरे एंगल को इसके इक्वल कर दिया तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई. दैट्स वाई AB इक्वल टू AC. देयरफॉर AB इक्वल टू AC, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि जब एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड्स तो इक्वल होंगी. दैट्स इट. आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन. पहले आपने ए पार्ट में कॉन्ग्रेंट प्रूव करा with the help of RHS. I'll just show you. With the help of RHS you have proved 90 degree. ठीक है, then this was hypotenuse common. फिर ये given था already. हमेशा SRP फॉलो करना है, स्टेटमेंट रीजन प्रॉपर्टी. कॉन्ग्रेंट हो गया विद RHS. ये आप लोग मत करना इसमें, ठीक है. आप सीधा ये करना कि हमारे पास वो टू एंगल्स, इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गिवन है. आई गेव यू द ईजीएस्ट वे, ठीक है. वो वाला आप कॉपी कर सकते हो. दैट इज़
दिस वन कि ये वाले एंगल्स इक्वल हैं, आई जस्ट मार्क इट, ये वाला आपका लिखोगे बी पार्ट में, दैट ये वाले एंगल्स इक्वल है CPCT से, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ये इक्वल होंगी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थे। उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे करके दिया हुआ है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड जो आप कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव रियल लाइफ सिग्निफिकेंस, वो कह रहे हैं रियल लाइफ सिग्निफिकेंस बता दूँ, तो ऑफकोर्स अगर ये ABAC इक्वल है तो ये क्या है, सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आइडेंटिकल शेप्स हैं, दैट्स इट। तो रियल लाइफ सिग्निफिकेंस के भी मार्क्स होते हैं, सो यू विल हैव राइट इट, ओके। Question 4 is done, super simple. You should know the isosceles property. Then if we see question number 3, super simple question. ये भी देख लेते हैं. It says a factory manufacture kites and each kite is a quadrilateral. Okay. AC DC के इक्वल है, मैंने मार्क करा हुआ है रेड से, AC DC के इक्वल है, एंड ये वाली साइड्स ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। सो देन दे आर सेइंग कि आप इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो जो ऊपर नीचे हैं और कंडीशन बता दो। बहुत आसान है। अब ना इसके 2 वेज हैं, आई विल टेल यू। आप बताओ ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो क्या ये SSS से हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। बट ना उन्होंने यहाँ पे बोल दिया स्टेट द कंडीशन एंड आइडेंटिफाई द इंक्लूडेड एंगल। तो अगर मैं SSS से कर दूँ तो उसमें इंक्लूडेड एंगल तो नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे किससे करना पड़ेगा? दिस इज़ द ओनली एंगल। तो दैट मीन्स अगर मुझे SAS करना है तो 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सो दिस साइड रेड वन इज इक्वल टू दिस वन, AC इक्वल टू DC गिवन, ठीक है। एंड दिस एंगल विच इज़ ACB इक्वल टू BCD गिवन, ठीक है, ये गिवन है। और BC क्या है? कॉमन, ठीक है। सो आपको बोलना इंक्लूडेड एंगल कौन सा था? इंक्लूडेड एंगल वाज दिस वन, ACB, दिस वन ACB एंड BCD, ओके। सो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट विद SAS। आप SSS से भी कर सकते थे, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज उसमें कोई इंक्लूडेड एंगल नहीं था। अगर ये इंक्लूडेड एंगल वाला क्वेश्चन नहीं होता तो आप SSS से कर सकते थे। आई विल जस्ट शो यू, यू नीड टू राइट दिस वन, SRP, सी दिस इज गिवन इक्वल, ये रीजन पूरा लिखना पड़ेगा, गिवन फ्रॉम डायग्राम, एंगल गिवन, दिस इज कॉमन, SAS से कॉन्ग्रुएंट, एंड इंक्लूडेड एंगल को आपने मेंशन कर दिया। बट जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो CPCT से सारे पार्ट्स भी इक्वल बोल दिया करो एंड जस्ट राइट द रियल लाइफ मीनिंग, दैट्स इट, कि सिमेट्रिक है, दैट्स इट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ग्रुएंस।